we shall see a term current density. We are approaching slowly towards the drift velocity. Current density क्या है? You denote it as a vector J. ठीक है, vector. Current density in a wire is defined as a vector whose magnitude is the current passing per unit area, current passing per unit area of cross section. Direction of J is in direction of current. So J is a vector quantity. Current is a scalar quantity. J is a vector quantity. अगर हम कहेंगे कोई एक वायर में कोई I करंट जा रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो ये पॉइंट P में क्या है? व्हाट विल बी करंट डेंसिटी एट पॉइंट P? इट इज I by A. इसका मैग्नीट्यूड होगा I by A. और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ J. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ J. सो सिंपल. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, क्योंकि ये स्टेटमेंट को मैं यूज करने वाला हूं. सपोज यहां पर कोई एक बार है जो कि इस शेप का है, ऐसा है, और मान लो कि इधर से कुछ आई करंट घुस रहा है. ऑब्वियसली current is flow of positive charges. Charges can neither be created nor be destroyed. So as much current is entering, that current is to pass out. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे A और B और C तीन पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एरिया सबसे एरिया सबसे ज्यादा है तो J विल बी मिनिमम. तो आप कहोगे J at A will have a magnitude less than J at C will be less than J at B. B में एरिया सबसे कम है. तो करंट डेंसिटी क्या है हमें समझ में आ गया. ठीक है. Now we shall see Ohm's law in point form. Suppose we consider a conductor or a resistance wire of cross-sectional area A, length L. We apply a potential difference across it. We apply a potential difference across it. Obviously, जो potential difference है मान लो वो V है. So because of the battery, a potential difference V is produced across the two ends. तो क्या होगा? ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा. E is electric field inside conductor, inside the wire. कितना है? dV by dx. You see it is dV by dx.
dv by dx वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, हम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड dv by dx। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस v, व्हाट इज द डिस्टेंस अक्रॉस व्हिच दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड l, so E is equal to v by l। Moreover, now I know by Ohm's law v is equal to I into r, v is the potential difference, I can write v is equal to I into what is r, rho l by a, rho is the resistivity, you bring this l to this side, v by l is equal to rho I by a, but what is v by l, it is E, and I by a it is j, so it is rho into j। और अगर हम वेक्टोरियल लिखेंगे you can write E, electric field in the material is rho j, E is in the direction of j, so rho हो गया resistivity। this is what is called Ohm's law in point form। ये point form का मतलब क्या है? point form का मतलब हुआ your electric field is a point function, it is defined at different points, at this point what is electric field, at this point you see j, कैसे, consider a small area, see what is the current passing through, I by area is j, at this point once you know the j, you know the resistivity of the material, you can find out the electric field here। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई मटेरियल में हम अगर कोई बैटरी अप्लाई करते हैं तो J जहां पर ज्यादा होगा वहां पर E ज्यादा होगा, तो ऐसा कोई मटेरियल में E is less here, E is maximum here, electric field inside the conductor is different at different positions depending upon the shape। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। In figure shown out of A and B where potential is more, current passing is more, current density, A and B are out of A and B, there are two sections, A is a section, B is another section, मतलब at which section पूछा, out of A and B current density is more, potential gradient is more, तो ऐसे करके पूछा इतने सारा चीज, एक क्वेश्चन इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट इज ए tapered rod, ठीक है, इट्स ए tapered rod of homogeneous material, homogeneous material, it's a tapered rod of homogeneous material। अच्छा, where potential is more, अरे ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, करंट पक्का ऐसा कुछ फ्लो कर रहा होगा, तो आप कहोगे सॉल्यूशन तो सबको मालूम है, VA must be more than VB। करंट कहाँ पे ज्यादा जाना होगा, सेक्शन ए से ज्यादा करंट जाएगा कि सेक्शन बी में ज्यादा करंट जाएगा, आप कहोगे जितना करंट इधर से जाएगा वो तो इधर से ही आएगा, तो इट मींस सेम, बोथ आर सेम, जितना करंट ए की सेक्शन से पार होगा उतना ही करंट बी के सेक्शन में पार होगा। कहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली J at B is more than J at A, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, एरिया कम हुआ सेम करंट, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या था करंट डेंसिटी का, I by A,
यहाँ पर आपका एरिया कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? E was नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि नहीं? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E, dV by dx का मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो देखो E कहां पे ज्यादा है और E क्या होता है? इट इज E is equal to J into rho। होमोजेनियस मटेरियल है, हर जगह रो का वैल्यू बराबर है। अगर रो का वैल्यू हर जगह बराबर है तो जहां पर J ज्यादा है वहां पे आपका E ज्यादा होगा, EB will be more than EA, और पोटेंशियल ग्रेडियंट dV by dx at B is more than dV by dx at A। समझ में आया क्या? तो चारों बिट हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखना है कि यहां पर कोई एक वायर है, कॉपर वायर है, लेंथ L, एरिया A। कोई एक दूसरा कॉपर वायर है of length L, area 2A, and they are connected across a battery। A thin and a thick copper wire are of same length, are connected in parallel across a battery। ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। फाइंड I1 by I2। फाइंड ऑप्शन दिया, यहाँ पर करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2। I1 by I2, J1 by J2, E1 by E2, ये तीन चीज आपको निकालना है। तीनों में करंट, दोनों में करंट का रेशियो, करंट डेंसिटी का रेशियो और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तीनों चीज आपको निकालना है। ठीक है। लेट रेजिस्टेंस ऑफ, और से ऐसे कहेंगे नाउ R1 by R2, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है भाई? रो L by A, ये रो L by 2A, it is 2:1। now I क्या होगा? V by R। so I1 by I2 क्या हो जाएगा? V by R1, अगर ये V है तो into V by R2, so it is R2 by R1, that is equal to 1 by 2। रेशियो हो गया 1:2। समझ में आया? J1 by J2, J is I by A, तो J1 by J2 is I1 by I2, A1 by A2, but I1 by I2 we have seen it is 1 by 2, A2 is 2A, A1 is A। अरे तो मारपीट होके बराबर हो गया, क्या हो गया? 1:1। E1 by E2, ratio of electric fields in them, and you know both are copper wire, both are copper wire। रो दोनों का बराबर है, ये तो रोजे है, तो हम क्या कहेंगे? रो J1 by रो J2 is 1:1। ऐसा क्यों हुआ? सीधे सीधे हम E1 by E2 निकाल सकते थे,
E कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V है, V बाय L, इसके क्रॉस में भी V बाय L। तो हम कहेंगे E1 एंड E2 आर सेम। तो दोनों के क्रॉस में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है एंड बराबर लेंथ है, तो आप कहोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड बोथ these conductors are the same। क्या हुआ? पहला चीज हुआ when we apply a potential difference across a conductor, an electric field of strength or electric field is established inside the conductor, the free electrons inside the conductor start moving in opposite direction of the electric field। ठीक है? The direction of electric field is from higher potential to lower potential। मैं वो सारा पॉइंट को नोट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। और हम क्या देखे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हुआ? हायर टू लोअर पोटेंशियल। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव किए? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मूव करने लगे। व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स will move from lower to higher potential। So the electrons, start moving or move in opposite direction मतलब कहां से? from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। जो दो चीज लिखे उसको अगर फिगर में लिखेंगे तो ये हुआ कोई एक कंडक्टर, इसमें आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और वोल्टेज अप्लाई करने के कारण नाउ दिस एंड इज एट हायर पोटेंशियल, दिस एंड एट लोअर पोटेंशियल। हियर V is more, here V is less, so it develops or establishes a current or electric field in this direction। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ हायर से लोअर। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे they will start moving in the opposite direction of current, opposite direction of electric field। When the electrons are going like this, electrons are coming like this, you know the direction of current is opposite to the flow of electrons। Why? Because current is defined as rate of flow of positive charge। These are negative charges moving like this, means you can say positive charges are apparently moving in the opposite direction। So you say
that way a current is established in the circuit. Phenomenon is clear. You apply a voltage, here it is high potential, here it is low potential, this is the direction of electric field, and the electrons experience force. Being negative charge, they experience force in the opposite direction of electric field. The electrons start moving. When the electrons start moving in this direction, you say current start flowing in the opposite direction. Point number 3. When you don't apply any external voltage, do you think the electrons are stationary? Now let's see. Now we shall see what is thermal velocity. Even when no external field is applied or no potential difference is applied, the electrons observe thermal photons and keep jumping in random directions. Keep jumping in random directions. तो क्या बोल रहे हैं, जब हम किसी एक कंडक्टर को देखेंगे जिसमें कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है, बट यू नो एट एवरी टेम्परेचर एवरी बॉडी इज गिविंग थर्मल रेडिएशंस. थर्मल रेडिएशंस हर एक बॉडी से निकल रहा है, आपकी बॉडी से भी निकल रहा है, इवन आइस से भी थर्मल रेडिएशन निकल रहा है. किसी भी टेम्परेचर में हो थर्मल रेडिएशंस निकलता है. खाली अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ तो उसमें से थर्मल रेडिएशन नहीं निकलेगा. At all other temperature we will see thermal radiations are there. Thermal radiations are electromagnetic waves, so they carry photons, the energy packets. At room temperature at around say 20 degree centigrade, यहाँ पर भी हर चीज से थर्मल रेडिएशंस निकल रहे हैं, फोटोन्स निकल के आ रहे हैं, और वहाँ पर एक फोटोन का रूम टेम्परेचर में उसका एनर्जी रफली अराउंड 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो वो फोटोन्स आर अवेलेबल. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, उस फोटोन का एनर्जी को खा के, जब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी खाता है हायर ऑर्बिट में जाता है, लेकिन हायर ऑर्बिट में वो रह नहीं सकता. कौन बोले, बोर बोले थे, हायर ऑर्बिट में वो रह नहीं सकता. वाई, क्योंकि उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π. ये आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे. तो ये एनर्जी को खा के हायर ऑर्बिट को गया लेकिन रह नहीं पाया, फिर वापस आया तो एनर्जी को फिर से छोड़ दिया, एंड दैट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय अदर. ऐसे करके सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली जंप कर रहे हैं, मनमानी डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं. कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. लेकिन आप देखोगे ये सारा मूव करने के बावजूद द कंडक्टर इज नॉट मूविंग. ठीक है, कंडक्टर इज नॉट मूविंग, मतलब इफेक्टिवली द क्लाउड इज नॉट मूविंग. इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी जगह है. कभी कभार आप देखे होंगे जब प्लेग्राउंड में जाके खेलते हो इवनिंग टाइम, ये बारिश के दिन में ज्यादा होता है. इन द इवनिंग आवर्स सडनली यू डिस्कवर कि आपकी सर से ऊपर कोई मसाला वाला तेल लगाया हो जिसका स्मेल आ रहा है, तो उसी तेल का स्मेल करके मच्छर का एक ग्रुप, छोटे छोटे फ्लाइज, आई डोंट से फ्लाइज, आई से फ्राइज मींस वेरी स्मॉल. ठीक है, वेरी स्मॉल फ्लाइज को हम फ्राइज कहते हैं. छोटे छोटे फ्लाइज का देखोगे पिलर जैसे आपके सर के ऊपर घूम रहे हैं. ईच वन इज मूविंग, उसमें ईच स्मॉल इंसेक्ट इज मूविंग बट द क्लाउड इज नॉट मूविंग. है कि नहीं? अभी अगर आप चलने लगोगे तो ये जो स्मेल है बाल का, ये तो उनको खींचने लगेगा, तो फिर आप देखोगे आपके साथ साथ वो भी चल रहे हैं. लेकिन चलते वक्त सारा ऐसे नहीं जा रहे, सब ऐसे ऐसे रैंडम ही मूव कर रहे हैं, बट द क्लाउड इज मूविंग. सब रैंडमली मूव कर रहे हैं एंड द क्लाउड
itself is moving with you. आप अगर भागोगे वो आपके पीछे पीछे भी भागेंगे. Are you getting? तो these things are something like this. Here they are all moving in random directions, but physically their center is not moving. But when you apply in electric field, वो ऐसे random move करते करते सब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे आगे आगे. हाँ, तो क्या हो गया? Keep moving in random directions, keep jumping in random directions. The average thermal velocity of electrons is zero. मतलब अल्टीमेटली जहां घूम रहे थे वहीं फंसे रहते हैं और आगे नहीं जाते हैं. Average thermal velocity of electrons is zero. Average thermal velocity zero का मतलब हुआ if U1 is a vector, U2 etc. represent the thermal velocities of different electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे हैं. देन एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो. मतलब सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को जोड़ो, जितने सारे सबका वेलोसिटी को जोड़ेंगे बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यू एड अप all velocities of all electrons divided by n. समझ में आ रहा ना? एवरेज थर्मल वेलोसिटी का मतलब हुआ कि जैसे एवरेज एज, आप लोग मान लो यू आर 5 स्टूडेंट्स, एक का एज है 20, दूसरे का 21, तीसरे का 16, किसका 17. एवरेज एज कितना है? चारों का जोड़ो बाय 4. यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सबका वेलोसिटी निकालो बाय n. n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या हो गया? इट इज कमिंग जीरो. ये एक्सप्रेशन हमें जरूरत पड़ेगा समझने के लिए व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर 4. Here I want to coin a new term called relaxation time. ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देख लेते हैं. अब क्या हो रहा है? ये सारा इलेक्ट्रॉन रैंडम ऐसे मोशन कर रहे हैं. अभी क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, इसका मतलब नहीं कि ये जो इलेक्ट्रॉन तुरंत मुड़ के जाने लगेगा, नहीं, वो ऐसे ही जाएगा. लेकिन हर बार जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐसे जाना था, सपोज ऐसे जाना था. अब क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? वो घूम फिर के अपनी जगह वापस आ रहा है. थर्मल वेलोसिटी की बात करें, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर ऐसे गया. क्यों ऐसे जा रहा है बार बार? क्योंकि दूसरों के साथ टकरा रहा है. देयर आर सो मेनी एटम्स, सो मेनी मॉलिक्यूल्स, सबके साथ टकरा के फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए थे तो क्या हुआ? ये ऐसे मूव कर रहा था. सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहे थे, अपनी जगह पे आ रहे थे और सिस्टम वाज नॉट मूविंग. अभी मैं क्या किया? आई अप्लाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रॉन तो अभी ऐसे जाएगा. नाउ लेट मी रीड्रॉ द पाथ. ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स आ रहा है. तो इधर जाने की बजाय कुछ इधर आएगा, अब इधर आने की बजाय कुछ इधर आएगा, इधर जाने की बजाय वो कुछ इधर आएगा. तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना. अब इधर जाने की बजाय थोड़ा ज्यादा चले जाएगा, पहुंचेगा कहां? यहां. अगेन इट विल रिपीट द पाथ. मतलब क्या हुआ? जो एंटायर पाथ था वो पाथ शिफ्ट कर गया, एंटायर पाथ था शिफ्ट कर गया. जस्ट यू कैन प्रैक्टिकली इमेजिन. कोई आपको डिटेल्स में नहीं पूछेगा. मैं बताया जो मच्छर आपके सर के ऊपर उड़ रहे थे, आप खड़े, वो उड़ रहे. अब देखोगे काफी देर तक उनका सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, where every particle is moving on your head. सर के ऊपर above your head जो फ्राइज थे वो सारे मूव कर रहे हैं. क्लाउड ऑफ फ्राइज, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लेकिन उनका सेंटर तो सेंटर है. जैसे जैसे आप उनको धीरे धीरे आगे
लेके जाओगे, आप चलने लगोगे, वो देखोगे आपके साथ आगे जा रहे हैं। मतलब क्या सारा पार्टिकल आपके डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नहीं, सारा रैंडम ही मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव करते करते धीरे धीरे इधर को फिसल रहे हैं। समझ में आ रहा? इट इज एज गुड एज, सोचो कि वो फ्लाई जो मूव कर रहे थे और हवा चलने लगा, वो सारा फ्लाई ऐसे ही मूव कर रहे होंगे, लेकिन हवा उनको ढकेलते हुए एक डायरेक्शन में ले रहा होगा। दे आर नॉट प्रैक्टिकली मूविंग इन द डायरेक्शन, वो लोग मूव कर रहे हैं अपनी मर्जी के डायरेक्शन में, लेकिन उनको हवा ढकेल के ले रहा है, हवा ढकेल के ले रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ढकेलते हुए ले रहा है, वो लोग जा नहीं रहे। अगर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, हम कहते हैं कि उनका वेलोसिटी, लेकिन हो क्या रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दे आर बीइंग ड्रिफ्टेड। मान लो कि कहीं स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ हुआ है, आपको यहाँ से वहां पर जाना है, सीधा आपके सीधे में जहां पर जाना है, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा है, आप यहाँ से निकल के वहां पर पहुंचते पहुंचते आपको लोग धक्का देके थोड़ा दूर में पहुंचा दिए। सो व्हाट यू से, यू आर ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राउड। क्राउड आपको ड्रिफ्ट करके उस डायरेक्शन में ले गया। क्राउड नहीं होता आप सीधे उसके पास जाते, क्योंकि उधर ही जाना चाहते थे और जा भी रहे थे, लेकिन क्राउड ढकेलते हुए आपको दूसरी जगह लेके पहुंचा दिया। लाइक दैट the electrons are moving in random directions due to their thermal velocity, but the electric field is trying to move them in its opposite direction. So जो velocity में इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन एंटायर क्लाउड मूव कर रहा है। जो वेलोसिटी में एंटायर क्लाउड मूव कर रहा है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग? दिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। When external electric field is applied, I don't say external, when electric field is applied across the conductor by maintaining a potential difference across it, the random jumping electrons start drifting in opposite direction of E, ठीक है। The actual velocity, अब देखो वो जो फ्लाई वाला एग्जांपल दे रहे थे, सर के ऊपर फ्लाई सारे उड़ रहे हैं, हर एक पार्टिकल का जो उड़ रहा है इधर उधर, उसका वेलोसिटी कितना है? बहुत ज्यादा है, सुई 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 मूव कर रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे जाने लगे, वो पूरा चीज धीरे धीरे आपके साथ जा रहा है। They are individually moving with some 100 meter per second, very speed, very high speed. But when you are moving slowly, the entire cloud over your head is also moving slowly. Means their drift velocity is very small, but individually they are moving with very high speed. Are you getting it? तो आप कहोगे individually the flies are moving with very speed, electrons are moving with very high speed, but the entire cloud is slowly drifting in the opposite direction of electric field. तो आप क्या कहेंगे? The individual electrons move with very high speed, that is of the order of 10 power 5 meter per second, in random directions, but keep drifting. ड्रिफ्ट वाला वर्ड का मीनिंग समझ में आया ना? ड्रिफ्ट हो गया, जैसे मान लो कि आप लोग, आपका स्कूल का असेंबली हो रहा है, असेंबली से निकले, क्लासरूम में जाना है, मैदान के फील्ड के अंदर से जाना पड़ रहा है, प्लेग्राउंड के अंदर से आप लोग गए, डेली आपका ये बिजनेस है।
आज असेंबली खत्म हुआ, आप जाना चाहते हो क्लासरूम में, देखे कि यहाँ पर कोई एक टोकरी में गोल्डन कलर का रैपिंग लगा के कोई चीज रखा है, अब ऑटोमेटिकली देखोगे आपका जो लाइन ऐसे जा रहा था वो ऐसे हो गया, क्योंकि हर कोई जा रहा है, थोड़ा झांक के जा रहा है। सो यू हैव ड्रिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, लेकिन कोई अट्रैक्शन है जो आपको ड्रिफ्ट करवा दिया है इधर को। सो यू आर ड्रिफ्टिंग लाइक दैट। सो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जंप कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के चलते पूरा का पूरा क्लाउड धीरे धीरे इधर को जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सा डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या लिखे यहाँ पर, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई स्पीड, दैट इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड इन रैंडम डायरेक्शन, बट कीप ड्रिफ्टिंग in opposite direction of electric field with very low speed, which may be of the order of some millimeters per second। समझ में आ रहा है क्या? मिलीमीटर पर सेकेंड स्पीड में वो जा रहे हैं। So this is what is called drift velocity। तो अगर कोई पूछेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, or this velocity of electron in opposite direction of electric field is called drift velocity। It is defined as mean velocity of all electrons, mean velocity of electrons averaged over all electrons। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इसको आप कहेंगे इट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी बोलने से लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जैसे होता है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पर एवरेज का मतलब कुछ दूसरा है। विल सी टू इट नाउ। इट इज डिफाइंड एज, काफी क्वेश्चन में तो 1 मार्क वाला था, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवरेज ओवर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब if V1, V2, etc. are velocities of individual electrons at any instant, then drift velocity is given by लिखते कैसे हैं? Vd। कैसे निकालते हैं? एवरेज मीन वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहे हैं सबका वेलोसिटी को पता करो, जोड़ो बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So this is the average velocity of electrons. Sometimes it is wrongly interpreted by some authors, some tutors. They say it is displacement by time. No. It is velocity of electrons averaged over all electrons। अब ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हो क्या रहा है? आप देखोगे कि अगर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, लेकिन क्या है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जैसे अभी मैं बताया कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो रैंडमली मूव कर रहे थे और वो यहाँ तक थे, इलेक्ट्रॉन्स वेर हियर, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे मूव कर रहे थे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। कैसे मूव कर रहे थे? कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। अभी मैं क्या किया, ये सब इलेक्ट्रॉन है, मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। नाउ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल अवेलेबल, still jumping, but each one is experiencing a force in the opposite direction of electric field. ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, सब ऐसे इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखोगे, आफ्टर सम टाइम t सेकेंड्स, तो देखोगे ये जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ये थोड़ा यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया है। ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Are they all going in this direction? No, no, they are moving in random directions only. But the entire cloud has now shifted from here to here. The cloud is gradually shifting. Why? Because each electron is eventually getting a force in the opposite direction of electric field. हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उल्टा डायरेक्शन में फोर्स आने के कारण ये पूरा का पूरा क्लाउड धीरे 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 जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में, वो धीरे धीरे आने लगा है। जैसे आप अपनी दोस्त के पास जाना चाहते थे, क्राउड आपको ढकेलते हुए ले लिया। हाँ, एक बार हुआ ऐसे, कोई आदमी जाके, वो हावड़ा ब्रिज है ना वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है, तो आदमी गया, निकल के जैसे हावड़ा ब्रिज क्रॉस किया, देखा कि वहां पर टिकट कलेक्टर होता है टीटी, वो टीटी क्या कर रहा है? टिकट 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 वहीं पे मांग रहा है। अरे क्या मांग रहा है? तुमको स्टेशन पे होना चाहिए, तुम यहाँ पर होकर टिकट कैसे मांग रहे हो? तो टिकट कलेक्टर बोला, यार मैं स्टेशन पे ही खड़ा था, लोग इतना जोर से निकलते हैं, ढकेलते ढकेलते मेरे को पूरा ब्रिज ही क्रॉस करवा दिए, यहाँ पर मैं खड़े होकर टिकट टिकट हो रहा। मतलब ऐसा ही आप चाहे अनचाहे में, बिकॉज देयर इज सम अनसीन फोर्स पुलिंग यू इन द अपोजिट डायरेक्शन, चाहे अनचाहे में काफी चीजें हो जाते हैं। सारा फोर्स देखने के लायक नहीं होता है, कुछ फोर्स तो इनविजिबल फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, है ना, वो खींच के आपको अपने रास्ते से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखना वैसे काफी इंटरेस्टिंग चीज फोर्सेस है, थिंग्स एंड बीइंग्स अराउंड, जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। आप इधर जाना चाहते हो, उनके अट्रैक्शन में फंसे, आप उधर जाओगे, लेकिन थोड़ा जाना चाहते थे ऐसे, ये आपको फंसाने वाला कुछ चीज आ गया, इंसान आ गया, खाना आ गया, दिखावट आ गया, तो आप ऐसे जाने की बजाय थोड़ा ऐसे जाओगे, क्योंकि थोड़ा ये खींच रहा है। सो ये ड्रिफ्टेड बाय दिस, एंड मोस्टली दिस ई इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके लिए एनिमी है, और वो एनिमी क्या है आपको बताओ? योर बेस्ट फ्रेंड। योर बेस्ट फ्रेंड इज योर वर्स्ट एनिमी, ही ओनली डाइवर्ट्स यू। ठीक है ना, जब पढ़ के एकदम समझने वाली पोजीशन पे होगे, तब उसका आ जाएगा क्या आ जाएगा? मैसेज आ जाएगा, हाँ क्या कर रहे हो? पढ़ लिया? अरे मैं कुछ नहीं पढ़ा, फिर तो गया आपका सारा जो है दिमाग, जो पढ़े थे सारा भूल गए। जस्ट और 1 मिनट या 2 मिनट पढ़ लेते तो समझ में आ जाता। यू वर एट द वर्ज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तभी फोन आ गया, किसका? बेस्ट फ्रेंड। तो इसको बेस्ट फ्रेंड कहोगे क्या? वर्स्ट एनिमी कहोगे? दैट एनिमी इज ओनली डिस्ट्रैक्टिंग यू, ड्रिफ्टिंग यू अवे फ्रॉम योर ऑर्बिट, आपके रास्ते से आपको निकालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्त बनाते वक्त थोड़ा सतर्क रहना। ठीक है, लोग फटाफट दोस्त बना देते हैं। ड्रेस खरीदने के लिए 25 दुकान में जाते हैं, कोई आधा चॉकलेट दे दिया, दोस्त बना देते हैं। थोड़ा सा माइंड मैच कर गया, दोस्त है कि नहीं? थोड़ा सा माइंड मैच कर गया, कुछ भी मैच कर गया, तेरा ड्रेस रेड है, मेरा भी रेड है, चलो फ्रेंड्स। नहीं, कुछ भी। तेरा नाम क्या है? राकेश। ओ मेरा नाम केसर है, चलो कितना मिलता जुलता है, चलो फ्रेंड। कुछ लोग तो फ्रेंड बनाने में कितना माहिर होते हैं। तेरा घड़ी में कितना बजा? 9, मेरा भी 9 बजा है, चलो फ्रेंड्स। ऐसे कर लेते हैं, कुछ भी चीज पे फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? ये एंटायर क्लाउड इज नाउ ड्रिफ्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो देख रहे हो क्लाउड यहाँ पे था, ये यहाँ तक आ गया है, इतना दूर आ गया है, कितने समय में? सपोज t सेकेंड में आया है, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा? अगर ये डिस्टेंस को हम l कहेंगे, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड इज नथिंग बट l by t। l क्या हुआ? डिस्टेंस मूव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ed क्या हुआ? l by t। इसको लोग एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं। एवरेज वेलोसिटी नहीं है, कितना डिस्टेंस मूव किया है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें l क्या है? l इज डिस्टेंस moved in
opposite direction of E in t सेकेंड, तो हम इसको कहेंगे L by T। खैर आपको एग्जाम में अगर पूछा गया डिफाइन और राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, अभी पढ़ने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको क्या लिखना है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से शुरू करके यहां पे खत्म करना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बाकी सब तो समझाने के लिए लिखे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू से सम मिलीमीटर्स पर सेकंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सम मिलीमीटर पर सेकंड में जाते हैं, हम यहां पर स्विच ऑन करते हैं, वहां दूर का बल्ब तुरंत जल जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने से तब ना जलेगा। अरे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं काफी ज्यादा स्पीड में, जैसे मान लो कि लाइन में आप लोग 50 लोग खड़े हो, ठीक है, और टिकट लेने के लिए खड़े हो, कोई पीछे वाला आदमी को अगर धक्का देगा, बहुत जल्दी आगे वाला आदमी के पास वो एनर्जी पहुंच जाएगा, वो गिर जाएगा, लेकिन हर एक आदमी का वेलोसिटी कम था, लेकिन जो एनर्जी था वो बहुत जल्दी पास कर गया। एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड सिग्नलिंग स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग विद अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी बट द एनर्जी इज पासिंग विद ए वेरी हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज वे। तो हम लोग देखें अभी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछेगा तो यही लिखेंगे हम लोग। मैं ये चीज को मिटाता हूं। Now we see one more new term that is called relaxation time. tau क्या, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अरे क्यों ऐसे गया, न्यूटन्स लॉ तो कहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, इफ ए बॉडी इज मूविंग इट कीप ऑन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, फिर इधर क्यों गया, यहाँ पर कोई धक्का मुक्का मारा होगा, किसके साथ टकराया होगा, तो अलग अलग चीजों के साथ टकराने थे, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने लगा है, ऐसे ऐसे करके वो जाने लगा है। अब हुआ क्या, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके साथ टकराया, यहाँ पर किसी दूसरे के साथ टकराया, फिर इधर आ गया। सोचो कि बहुत सारे ब्रिक्स रखे हुए हैं, आप एक बॉल फेंकते हो, बॉल इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, वेरी जिगजैग पाथ में जाएगा। एग्जैक्टली दैट वे द इलेक्ट्रॉन फॉलोज सेवरल नंबर ऑफ कोलिजन। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रॉन को यहां से जाने के लिए जो डिस्टेंस जाना पड़ रहा है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब इस रास्ते में कोई टकराव नहीं हुआ, और पार करने के लिए जो टाइम लगता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन is moving through several collisions the time gap between two consecutive collisions is called its relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्स कर रहा है, अभी कोई मारपीट करने वाला नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम है ना। एक टीचर पीरियड में रहे, जैसे क्लास खत्म हुआ वो निकले, दूसरा टीचर आने के लिए बीच में 10 मिनट का गैप हो गया, और 10 मिनट पूरा सारे क्लास के बच्चों का क्या है रिलैक्सेशन टाइम। कुछ भी कर सकते हैं, हाथ पांव हिला के, कोई किसको मार सकता है, कोई किसको खींच सकता है, कोई थोड़ा हाथ सीधा कर सकता है, क्योंकि वो रिलैक्सेशन टाइम है। बिटवीन टू डिफरेंट कोलिजन जो टाइम स्पान है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हाउ यू कैलकुलेट रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ टाउ 1 टाउ 2 टाउ, मैं क्या बोल रहा हूं, टाउ क्या हुआ, टाउ मत बोल देना, टाउ फूफा नहीं है, टाउ 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 1 टाउ 2 टाउ 3 etc. are relaxation times of different electrons
at any instant. Then overall relaxation time is given by क्या, टाउ ओवरऑल, क्या ये, इट इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सारा इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई नई चीज नहीं है, फॉर्मूला सारा सिमिलर है और ये बार बार आता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, यहां तक लिखना है। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी रेगुलरली कमिंग। 10 साल की बोर्ड में 8 बार आपको मिलेगा। यू चेक व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाहर उसको कुछ याद ही नहीं है, वो लोग वही बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं, ये लिखना है, यहां तक लिखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर इज 6. We shall now establish a relation between drift velocity and relaxation time. Drift velocity and relaxation time, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ये सब क्या था, these are relaxation times of different electrons at a particular instant. ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या था, इसका क्या था, इसका क्या था, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का सबका रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ दिए, n में डिवाइड किए, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी। अभी हमें इनका रिलेशन निकालना है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E क्यों होता है, कोई Q कूलम की चार्ज के ऊपर E इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स आएगा, E मतलब आप एक वोल्टेज अप्लाई कर दियो कंडक्टर के क्रॉस में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो आप चाहो तो थोड़ा सा समझाने के लिए, ज्यादा क्रेडिट लेने के लिए एक छोटा सा फिगर ऐसे बना के टीचर को थोड़ा सा इंप्रेस कर सकते हो। अब योर टीचर विल बी इम्प्रेस्ड। हाँ, क्या हुआ, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स आ रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन ज्यादा इंप्रेस करने के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। क्या ध्यान रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। देखो ये हायर है, ये लोअर है, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, क्या कहोगे, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, क्या हुआ, E by m। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, से इट इज 1 u1। व्हाट इज दैट, दैट इज द इनिशियल थर्मल वेलोसिटी। इनिशियल थर्मल वेलोसिटी क्या था, u1। ठीक है, नाउ एक बार कोलिजन हुआ और दूसरे कोलिजन के बीच में उसको कुछ टाइम गैप मिला तो हम क्या कहेंगे, टाइम क्या मिला उसको, टाउ 1 टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में टाइम गैप भी दिया है टाउ 1। अब क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो। हुआ यूं है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड एक इलेक्ट्रॉन जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था, अब आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। उसके पास u क्यों था, बिकॉज ऑफ द थर्मल वेलोसिटीज, जो थर्मल एनर्जी को ऑब्जर्व करके इधर उधर कूद मार रहा था, उसके चलते उसके पास एक वेलोसिटी u था, उस वेलोसिटी में था। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन आने लगा। तो उस एक्सीलरेशन के चलते ये मूव करेगा। कब तक, जब तक किसी दूसरे से नहीं टकराया। कोई बॉडी के ऊपर आप एक फोर्स दोगे, वो मूव करेगा एक्सीलरेशन में। कब तक, जब तक किसी दूसरे के साथ नहीं टकरा रहा है। अगर आप फोर्स दिए, वो मूव करते करते किसी दूसरे के साथ टकरा गया तो वो भी उसके ऊपर कुछ फोर्स दे देगा और उसका मोशन बदल जाएगा।
तो कब तक ये मोशन चलेगा? फॉर ए पीरियड टाउ 1, दैट इज कॉल्ड द टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। मैं इसका फोटो भेज दिया, आपको चिंता की कोई बात नहीं। तो अब हम कहेंगे व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन just before or just after one relaxation time, क्या हो जाएगा? देखो तो आप जानते हो कि V is equal to U plus A into T। अब हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास M है, तो मैं इसको A1 नहीं लिख रहा हूं, एक्सीलरेशन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन इज सेम। So T क्या है? T is tau1, you call it tau1। तो क्या हुआ? V1 is equal to U plus A tau1। ठीक है ना? तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जिसका इनिशियल वेलोसिटी था U1, वो tau1 टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया? U1 plus A tau1। ऐसे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका इनिशियल वेलोसिटी था U2, लेकिन उसका एक्सीलरेशन भी A रहेगा, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम कुछ दूसरा रहेगा T2। तो उसके लिए क्या होगा? सिमिलरली फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स we can write V2 is equal to U2 plus A tau2, क्योंकि सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है। टाउ इज टाइम स्केल, इट इज स्केलर क्वांटिटी, tau2 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम लिख सकते हैं क्या? Vn is equal to Un for n number of electrons A tau1। ठीक है, अगर हम LHS को ऐड कर देंगे, एडिंग द इक्वेशंस क्या मिला? देखो तो LHS में क्या मिलेगा? V1, V2, V3, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या मिलेगा? U1 plus U2 plus U3 and so on प्लस A तो सबका कॉमन है, A गया बाहर, अंदर tau1 plus tau2 plus tau3 सबका है ना। Let us divide on either side, divide n on either side। अगर हम दोनों तरफ n डिवाइड करते हैं, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी। तो हम कहेंगे इफ और डिवाइडिंग n on either side में n डिवाइड करेंगे। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोनों तरफ अगर n डिवाइड करेंगे, LHS में क्या मिलेगा? V1 plus V2 plus V3 by n is equal to U1 plus U2 plus U3 by n plus A into T1 plus T2 plus T3 by n। हर जगह n हो गया। What does this quantity represent? It is average velocity of n electrons, sum of all velocities by n is nothing but the drift velocity। क्या है? drift velocity से बेहतर। ये क्या है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या था? 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है 0। फिर क्या हुआ? इधर A क्या है? A क्या है? A इज एक्सीलरेशन, क्या है वो? E by m है कि नहीं? अगर हम कहेंगे E by m और ये tau1 tau2 ऑल डिवाइडेड बाय n क्या देगा? ओवरऑल रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या मिला? Vt is equal to E tau by m, E tau by m। उसमें m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको समझ में आना चाहिए। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
ठीक है, लिखना पड़ता है ना। खाली एक बार गड़बड़ है यहाँ पे, बताओ आप जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालोगे, निकालते निकालते सडनली इसको जीरो लिख दोगे तो लोग बोलेंगे क्यों जीरो हो गया। थोड़ा क्या लिखना है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो। क्या लिखना है बगल में, बिकॉज एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो व्हाट यू फाइंड, यू फाउंड ए रिलेशन बिटवीन drift velocity and relaxation time. Suppose here is a conductor, अब इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है कि हम करंट पास करवाना चाहते हैं। हाउ, बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज अक्रॉस दिस। तो मैं मान लो कि यहाँ पर ने ऐसा एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जैसा एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे दिया, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने के कारण वो जो रैंडमली जंप करने वाले इलेक्ट्रॉन जंप तो करते रहेंगे, लेकिन जंप करते 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 इधर धीरे धीरे जाने लगेंगे। और हाउ यू डिफाइन करंट, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो तो ठीक है, कैसे निकालते हैं, निकालना क्या है, जस्ट वेट एट एनी सेक्शन एंड सी हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग पर सेकेंड। अगर t सेकेंड में q कूलम ऑफ चार्ज किसी एक क्रॉस सेक्शन को पार होके जा रहे हैं, द करंट इज q by t। सो वी विल टेक द बेसिक डेफिनेशन टू डिराइव इट। क्या हुआ, ये सारा इलेक्ट्रॉन अभी चलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू टर्म पहले ले लेता हूं, स्मॉल n। लेट, थोड़ा कंफ्यूज मत करना माय डियर स्टूडेंट्स, आगे भी हर जगह हम स्मॉल n दिए। आप एक काम करना, नोट बनाते वक्त आगे का जो सारा स्मॉल n था ना उसको कैपिटल N कर देना। तो रिप्रेजेंट लिखना क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख देना। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रहे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो सारा इलेक्ट्रॉन जो घर में तो रहते हैं, थोड़ा सा धक्का मुक्का देने से घर से छोड़ देते हैं। थिंक अबाउट सोडियम, क्या है एटॉमिक नंबर 11, नहीं 281। उसको तो सेकेंड ऑर्बिट में ही ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया है, खाली के लिए पड़ा है, उसको चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन भी देख रहा है मेरे को घर वाले ज्यादा कोई लगाव नहीं है, बाहर से कोई थोड़ा सा चॉकलेट दिखाएगा भाग जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे भाग जाएगा। सो यू से दिस फ्री इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली इट कैन गो, मतलब जितना बेटर कंडक्टर होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कोई पूछेगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर इन आयरन और मोर इन वुड, आपको होगा आयरन भाई मेटल है, करंट फ्लो कर जाता है, कंडक्टर है, तो आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन आयरन और मोर इन कॉपर, आपको कॉपर तो बेटर कंडक्टर है, इसमें और भी ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज मोर इन कॉपर। ठीक है, सो इसको कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जो जितना बढ़िया मटेरियल होगा उसमें पर यूनिट वॉल्यूम उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो n is the number of free electrons per unit volume. It is more for good conductors. अगर आपको पूछा गया बताओ कॉपर और एल्युमिनियम में से कौन बेटर कंडक्टर है, आप कहोगे कॉपर बेटर कंडक्टर है, एल्युमिनियम में तो थोड़ा बहुत हीट जनरेट होता है। अच्छा, तो फिर किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कॉपर में क्या एल्युमिनियम में, आप कहोगे कॉपर में ज्यादा है। यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर लेंगे उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वी आर यूजिंग ए टर्म, मैं क्यों इसको समझा, ये सारा बखेड़ा खड़ा करेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसलिए इनको मैं समझाने की कोशिश किया। अब क्या हुआ यूं कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे रैंडमली मूव कर रहे थे। ठीक है, ये सारे रैंडमली मूव कर रहे थे। आई कंसीडर ये सेक्शन से, आई कॉल दिस सेक्शन इज ए बी। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये चलता फिरता फ्री इलेक्ट्रॉन है
जो चलने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में, सारा फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर को एक फोर्स आने लगा है। आई एम नॉट शोइंग द वेलोसिटी, आई एम शोइंग देयर फोर्स। इधर को आने लगा है, तो वो लोग इधर उधर जो मूव कर रहे थे अभी धीरे धीरे इधर जाने लगे। ठीक है, तो सोचो कि ये आके यहाँ पे पहुंच गया कितनी समय के बाद से, टी सेकंड बाद। कहां पे? ए डैश बी डैश इस सेक्शन पे आके पहुंच गए। ठीक है, वो ए बी पे थे और आके यहाँ पर पहुंच गए। मतलब हुआ क्या, जैसे हम स्विच ऑन किए, जैसे हम इसका स्विच ऑन किए तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो यहाँ पर थे और टी सेकंड बाद ड्रिफ्ट करते हुए हुए यहाँ तक आ गए थे। कितना दूर आ गए थे? कितना दूर आ गए थे? इतना दूर आ गए थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट द 3 electron cloud drift from section AB to A dash B dash of the conductor in t seconds. So distance moved by cloud of electrons. ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना मूव किए? हर एक इलेक्ट्रॉन उल्टा पुल्टा मूव कर रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं बार बार। वो आपकी सर के ऊपर वो मच्छर उड़ रहा था, उसी को ही याद रखो। हर मच्छर इधर उधर उड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे जा रहे हो वो एंटायर मच्छर वाला क्लाउड आपके साथ धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जा रहे हो, वी वेलोसिटी में जा रहे हो, तो टी सेकंड में आप कितने दूर जाओगे? vt। वो क्लाउड कितना दूर जाएगा? vt। जबकि इधर उधर होते हुए वो बहुत ज्यादा दूर गए, है ना? लेकिन द क्लाउड हैज मूव्ड बाय ए डिस्टेंस vt। तो क्या लिखेंगे? लेट द 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रिफ्ट फ्रॉम सेक्शन AB to A dash B dash of the conductor in t second. Distance moved by the cloud of electrons क्या हो जाएगा? is equal to drift velocity into time. Drift velocity into time. तो कितना दूर गया? Obviously this distance is vd into t. ठीक है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें निकालना करेंट। कैसे पता करें करेंट? हम देखेंगे कि ये सेक्शन से कितना चार्ज पार हुआ है। पहले यहाँ पे जो चार्जेस थे वो रेस्ट में थे। ये बदमाश लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हुए यहाँ पर आए, तो ये सब अभी मूव करने लगे, क्योंकि धक्का मुक्का देके सब चलने लगे। सो आप कहोगे यहाँ पर ये रेस्ट में थे, इनका कोई इफेक्टिव वेलोसिटी नहीं था, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गए ये लोग भी चलने लगे। तो आप क्या कहोगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज has crossed this section? कितना चार्ज ये सेक्शन को क्रॉस किया? जितना चार्ज यहाँ पर है वो सारे तो इधर से पार होके आए, ये सारे चार्ज इधर से पार होके इधर आए हैं। तो हम क्या कहेंगे? चार्ज, इसको हम क्यू कहेंगे, क्यू चार्ज क्रॉसिंग सेक्शन AB is equal to charge available in the volume A, B, A dash, B dash। ये कंडक्टर है जिसकी बात कर रहे हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में हम लोग बोले नहीं थे। चलो, लेट A is क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मतलब दिस एरिया इज A। ठीक है, हाँ, तो कितना चार्ज इसको क्रॉस किए? जितने चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है। अरे भाई, कितने चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है? जितने चार्ज क्रॉस किए। हाँ, ये तो रिडंडेंसी हो गया, कुछ आंसर नहीं निकल रहा है इसका। कितने चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है? दैट इज
वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट इनटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, सो इट इज वॉल्यूम ऑफ A B A dash B dash into N द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है देखो तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये एक सिलेंडर जैसा चीज है, नहीं सिलेंडर जैसा चीज है, और इसका एरिया कितना है, एरिया तो A है, एरिया इज A, लेंथ कितना है VD इंटू T, लेंथ इज VD इंटू T, तो हो गया A VD इंटू T इज द वॉल्यूम इंटू N is the number of electrons crossing, N क्या है, number of free electrons per unit volume। तो इतना तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E, तो कितना चार्ज गया A VD T N E। फिर से बताता हूं, वॉल्यूम ऑफ दिस इनटू इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस क्या हो गया, दिस लेंथ VD इंटू T निकाले थे हम लोग, दिस लेंथ इज VD इंटू T, और ये VD इंटू T अगर है दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं VD इंटू T इज द लेंथ, एरिया A, वॉल्यूम हो गया A इंटू VD इंटू T, ये हो गया वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर N है, इतना वॉल्यूम में कितना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है इंटू N, इसका मतलब इतना तो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो कितना चार्ज क्रॉस किया है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, चार्ज क्रॉसिंग द सेक्शन Q लिख रहे हैं, so that into E, ठीक है, this whole thing into E gives you the charge। how many electrons have crossed कहेंगे तो हम कहेंगे AVDT into N। how much charge has passed AVDT into N into E, this is the charge crossing the सेक्शन। अच्छा, ये चार्ज क्रॉस कर गया सेक्शन को कितना समय में, ये सारा सिलसिला कितना समय में हुआ, इन T सेकेंड्स। तो हम क्या कहेंगे, सेक्शन ए बी, हाँ तो क्या लिखेंगे, करंट इज Q बाय T, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम A V D T N E बाय T, एक दूसरे को खा गए, है ना। क्या मिला, T तो T को कैंसिल हो गया, N E A V D, तो क्या मिला, the current is given by N E A V D। so the relation between current and this is coming out to be I is equal to N E A V D। और अगर चाहो तो आप इसको और थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, A को इधर ले आओ, I by A gives you the current density, लास्ट क्लास पढ़ाए थे, I by A is J, और J is current density which is I by A, I by A कर दो, क्या बच गया, it is N E V D। this is one more relation we are getting। so relation between drift velocity and drift velocity and current density is this। relation between drift velocity and current is this। समझने की कोशिश करते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, कोई एक बैटरी है, कितना वोल्टेज कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी है, एक पतला कॉपर वायर एक मोटा कॉपर वायर लगा है, कौन सा वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। हम तो जानते हैं कि अभी पहला वाला वायर का अगर रेजिस्टेंस कहेंगे रो एल बाई ए, दूसरे वाले का इट इज रो आई कॉल इट A1, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस रो एल बाई A2, जबकि हमें दिया गया है कि A1 A है, A2 2A है, वो बाद में निपट लिया जाएगा, पहले तो देखते हैं। पहला वाले में कुछ करंट जाएगा, व्हाट इज द करंट I1, दूसरे वाले में कुछ करंट जाएगा, कॉल इट I2। तो I1 क्या हो गया, क्या पोटेंशियल लिखने दिए, V बाय R1, ठीक है। I2 क्या हो गया, V बाय R2, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों वायर में डिफरेंस क्या है, ओनली एरिया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो अगर हम कहेंगे थोड़ा इसको जनरलाइज करके करेंगे तो आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, तो आसान रहेगा, जस्ट ए मिनट।
फॉर ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, area A, if potential difference is V, then what is the current? V by R. V by R मतलब V by रो L by A. ऐसा है। अच्छा, I का क्या वैल्यू है? I तो आप जानते हो N E A V D that is equal to V A by रो L ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I क्या होता है? आप तो जानते हो फॉर्मूला, I is equal to N E A V D। तो क्या हुआ? इधर का A कैंसिल हो गया, क्या मिला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V by रो L N E। Thus V D is independent of ए के ऊपर कहां डिपेंड किया? ए तो कर गया, चाहे ये मोटा वायर हो पतला वायर हो, जो वीडी है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। तो किसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा? पतला वायर की मोटा वायर? अरे वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, पतला वायर हो मोटा वायर हो क्या फर्क पड़ता है ना? तो हम कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी सेम, is independent of A, it will be same in each wire. It will be same in each wire, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सा चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। यू कैन एस्टैब्लिश द रिलेशंस एंड यू कैन डू। ठीक है, तो और भी ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो व्हाई टू किल योर टाइम नाउ, मैं कुछ क्वेश्चंस करके वीडियो में आपको भेज दूंगा, 4-5 क्वेश्चन और ज्यादा बन सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेटेड, उसको मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको कर लोगे। और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास फॉर चैप्टर कैपेसिटेंस।